Good evening, all of you. Now we start the approach of basic curve method. It is a very basic concept here. Before starting this topic, now we have basic knowledge about multiplication approach. Hopefully, you already know. If I'm saying whenever you multiply two negative numbers, so answer should be positive. One negative number and one positive number, your answer is negative. If both are positive number, your answer is positive. Second more thing. If we multiply negative number odd times, answer is always negative. What is the meaning of odd times? As example, negative into negative into negative. It like 3 times. So product is always negative. Minus 3 multiply minus 5 multiply minus 7. Product is not important. The only point is sign. Minus into minus plus. When you multiply this one plus. And plus again multiply with minus. So answer should be minus. So take a simple approach. Same for when you multiply negative sign 4 times, answer is positive. How can say? Minus 2 into minus 7 into minus 3 into minus 4. This is not important product. The important point sign. Minus into minus plus. Again say minus into minus plus. It like say plus 14 and this one plus 12. So when you multiply, this is plus into plus, answer is plus. This is the very important point whenever work on baby curve method approach. Hopefully it is clear to everyone. तो ये चीज पहले हमें समझ में आनी चाहिए कि हमें बेबी वर्क को फॉलो कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे सारा गेम हमारे पास साइन का होता है. होपफुली ऑलरेडी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो as example, if I take example like x minus 5 x minus 3, is it more than 0? X minus 5 x minus 3 is more than 0. So what is the value of x, or we can say what is the range of x? The simple logic. So it's a number line. Next thing is the what is the critical point. Critical point means किस value पे आपका result 0 हो जाए. It's called critical point. Like if you can put x is equal to 5 here, answer should be 0. How? X is equal to 5. 5 minus 5 and 5 minus 3 is 0 into 2, answer should be 0. Second critical point, x is equal to 3. So we can say 3 minus 5 and 3 into minus 3 is 0. क्रिटिकल पॉइंट जिसपे इत सिद्धम खत्म, कुछ नहीं मिलना उस पे. सो x इज इक्वल टू 5 पे आपका आंसर 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू 3 पे हमारा आंसर 0 हो रहा है. सो ऑन बिहाफ ऑफ नंबर लाइन वी कंसीडर 3 इज हियर and 5 is here. On behalf of number line, center point is 0. Whenever move right side of 0, it's a positive value. Whenever move the left side 0, it's negative value. बीच में 0, राइट में जाने पॉजिटिव आंसर आता है, लेफ्ट में जाने पे नेगेटिव आंसर आता है. हमें ध्यान रखना होगा. नाउ वेवी कर्व से हम रेंज फाइंड कैसे करते हैं विदाउट सिंप्लीफिकेशन. तो व्हेनेवर आपने यहाँ पे 2 पॉइंट प्लॉट किए 3 and 5, तो आपने इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. देयर आर 3 पार्ट्स, प्लीज बी केयरफुल. वन पार्ट इज बिलो 3, second part is lie between 3 and 5, other part is more than 5. तो सिंपली 3 पार्ट में पोर्शन हमारा डिवीजन फॉर्म में हो चुका है. तो हमें इसी पे वर्क करना है कि 3 पार्ट में अगर ये डिवाइड हो रहा है तो हमें काम कैसे करना होगा. तो एक वैल्यू हम यहाँ पे चूज करेंगे लाइक से x लेस देन 3. इसके लिए इस पार्ट के लिए यहां के लिए आप x चूज करेंगे x इज मोर देन 3 एंड लेस देन 5. यहां के लिए आप चूज करेंगे x इज मोर देन 5. तो 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. हमें इन्हीं तीनों पार्टों पे वर्कआउट करना है. वैल्यू अकॉर्डिंग टू यू, आप कुछ भी चूज करिए, जो हमारे लिए इजी होगा हम उस पर वर्कआउट करेंगे. ऐसा कोई ना थंब रूल नहीं है कि नहीं इसी को पिक करना है. सो x से 3 से बिलो वैल्यू
3 से बिलो वैल्यू सपोज मैंने कहा नाउ वी पिक 2, मैंने 2 को पिक कर लिया कि मैं 2 पे वर्क करता हूँ। इफ एक्स इज नाउ फर्स्ट कंडीशन, केस 1 पे आता हूँ। केस फर्स्ट हमारे पास है जब एक्स 3 से कम होगा, तो मैंने कंसिडर किया लाइक एक्स इज इक्वल टू 2। सॉल्व करने की कोई नीड नहीं होगी आगे, अभी हमारा इनिशियल है तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अदरवाइज सिंपल वर्क ऑन साइन, सिंपली साइन पे वर्कआउट करना है, कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना होगा। इट लाइक 2 minus 5 and 2 minus 3. 2 minus 5 it like minus 3 and it like minus 1. प्रोडक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, साइन इज इंपॉर्टेंट। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे +3। +3 मीन्स पॉजिटिव। आपका रिजल्ट क्या आ गया? पॉजिटिव। अगर x 3 से बिलो रखते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का मतलब यू कैन यूज अपवर्ड ऑफ नंबर लाइन, माइनस का मतलब डाउनवर्ड ऑफ नंबर लाइन। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कर्व, जो हमारा पॉजिटिव शो कराएगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रूफ किया है कि अगर हम x को 3 से बिलो लेते हैं, यू कैन चूज एनी वैल्यू टिल माइनस इनफाइनाइट, आपकी कंडीशन 100% ट्रू है, कभी गलत नहीं होगी, कभी रॉन्ग नहीं हो सकती है। डोंट वरी। सेकंड केस पे आता हूं, मैं यहीं पे रेस करके दिखाता हूं सेकंड आपको। केस सेकंड पे हमारे सामने बेटे क्या था कि x को हमें पिक करना है 3 और 5 के बीच में। द बेटर वे 4 पुट करो ना, डेसिमल पे जाने की नीड ही नहीं ना, इंटीजर लो ना, क्योंकि हर कंडीशन पे ट्रू केस बनेगा। x इज मोर देन 3 एंड लेस देन 5, वी कैन पिक 4। तो केस 2 पे आ गया मैं। केस सेकंड पे भाई मैंने कहा हम x को 4 लेके चलते हैं। 4 लेके जाएंगे, 4 minus 5 एंड 4 minus 3, इट अगेन से -1 एंड +1। सो आपका आंसर आ गया -1। माइनस का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड। 3 से लेके 5 तक आप कहाँ रहेंगे? नेगेटिव करेंगे, ये साइन को शो करेंगे। विन मोर देन 5 बेटे, मोर देन 5 का मतलब इज द केस थर्ड। तो मैंने कहा भाई x को मैं मोर देन 5 लेता हूँ। अगेन रिपीट, मोर देन 5 you can put any value which is more than 5, 6, 7, 8, 9, 10. Don't pick decimal number, इंटीजर लो, काम खत्म करो। तो सिंपली इफ x इज इक्वल टू 6 मैंने लिया, तो 6 पे कंडीशन क्या बनेगी बेटे? 6 minus 5 एंड 6 minus 3, इट इज 1 एंड 3। आंसर क्या आ गया? 3, विच इज पॉजिटिव। यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स आप यहाँ से ऊपर जाएंगे। अब आपका कर्व कंप्लीट हो चुका है। वेन फोकस ऑन इक्वेशन, इक्वेशन आपके सामने क्या बोल रही थी? इक्वेशन में हमारे सामने यहाँ पे था कि x minus 5 into x minus 3 is more than 0। मोर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। अब आप कर्व के भी पे बताइए कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ है आप। तो अगर पॉजिटिव के भी पे जाएंगे तो बेसिकली आप पॉजिटिव इस जगह पर है, ये पार्ट आपका पॉजिटिव शो कर रहा है और ये पार्ट हमारा पॉजिटिव शो कर रहा है। इतनी वैल्यू हमारी पॉजिटिव शो कर रही है। अब इसी को हमें रेंज फॉर्म में शो करना है, जो आप ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीख के आए होंगे इनइक्वालिटीज फॉर्म में, कि इनइक्वालिटीज में इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो व्हाट इज द आंसर हियर? योर आंसर शुड बी से x इज लेस देन 3 और x इज मोर देन 5। वाई यूजिंग और साइन, क्योंकि बीच में एक गैप क्रिएट हो गया जिसको आपको जंप करना होगा, आइदर मूव बिलो 3 और मूव अबव 5। तो ये हमारे सामने x की वैल्यू आती है। इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अदर वे में, प्लीज बी केयरफुल। x बिलोंग्स टू, सॉरी, वी यूज स्मॉल ब्रैकेट नॉट ए करली ब्रैकेट, करली मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू पिक नहीं करेंगे बेटे यहाँ पे। स्मॉल ब्रैकेट -5 to 3 एंड यूज अगेन स्मॉल ब्रैकेट यूनियन 5 to प्लस इनफाइनाइट। ये दो तरीके हमारे पास, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो वेवी कर्व मेथड से एक बेनिफिट ये होता है कि विदाउट सिंप्लीफिकेशन अपने आंसर पे आप इजिली पहुंच सकते हैं। तो इसमें मैंने बहुत कुछ सॉल्व किया, लेकिन अगले क्वेश्चन में हम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे, हम लॉजिकली आंसर निकालेंगे, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन साइन। हमें सिर्फ साइन पे ध्यान रखना है, आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव है नेगेटिव, दिस इज द इंपॉर्टेंट, दिस नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू का हमें मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ साइन पे वर्क करना है, आइदर से अपवर्ड और डाउनवर्ड, इतना सा काम हमारे पास है। चलिए नॉट टेक नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ आई टेक randomly a number x minus 5, x plus 4,
x प्लस 7 इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 का मतलब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इन तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव बनना चाहिए। तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो नेक्स्ट थिंग इज द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि x की वो वैल्यू पिक करना है जिसपे रिजल्टेंट हमारा 0 बन जाए। और क्रिटिकल पॉइंट बेटे जस्ट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। होपफुली कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा, बहुत छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन जस्ट अपोजिट साइन। एडिटिव इनवर्स का मतलब कि आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7, सो व्हाट शुड बी एट 7 रिजल्ट शुड बी 0, इट्स कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो आप बोलेंगे -7। सेम फॉर -5 में क्या ऐड करने पे आपका आंसर 0 आएगा? डेफिनेटली 5 आएगा बेटा। x प्लस 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? -4। x प्लस 7 व्हाट इज द वैल्यू x? -7। इट्स सिंपल एडिटिव इनवर्स। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो यहाँ पे क्रिएट होते हैं इन ऑर्डर, अगेन रिपीट, इन ऑर्डर, रेंडमली नहीं, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन नंबर लाइन एंड नंबर लाइन इज ऑलवेज मूव माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये इसका सीक्वेंस है। तो नंबरों का अरेंजमेंट सेम सीक्वेंस में करना जरूरी है। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर है -7, -4 और 5। इनको हम नंबर लाइन पे शो करने जा रहे हैं इन ऑर्डर। -7, -4 एंड 5, ये आ गए। तो प्रीवियस क्वेश्चन में 2 क्रिटिकल पॉइंट थे तो 3 पार्ट हुए थे। यहाँ पर 3 क्रिटिकल पॉइंट है तो आपके पार्ट बेटे पूरे बनेंगे जाकर 4। तो केस वन का मतलब भाई ये पार्ट हमारे पास, ये केस 1 है, फर्स्ट पार्ट। ये हमारा बनेगा सेकंड पार्ट, इट लाइक द थर्ड पार्ट एंड देन फोर्थ एंड 5। तो इसमें हमें वर्कआउट करना शुरू करना है। पहली कंडीशन है इस केस में x को हमें लेस देन -7 लेना है। लेस देन -7 वी कैन पिक -8। अगेन रिपीट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको सॉल्व करना नहीं होता है, आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप ओरली आंसर निकाल लें। x इज लेस देन -8, तो मैंने कहा सपोज x को मैंने 8 कंसिडर कर लिया। तो वेन एवर टेक 8 इज हियर -8, इट लाइक -8 -5, सॉरी वेट करना बेटा, -8 -5। सेकंड थिंग -8 +4, further -8 +7, it likes say -13, this one -4, it like -1, minus into minus plus and plus into minus again say minus, नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड, नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड, आप नीचे से जाएंगे। -7 से एक लाइन पास होगी, कर्व पास होगा जो नीचे से ऊपर जाएगा, इट लाइक से माइनस। Second, -7 to -4. You can pick any value between -7 and -4. So what is the best value? It means the -6, I say -5, जो बीच में हमारे पास आएंगी। Second thing, x is more than -7 and less than -4. So now we consider x is equal to -6. x -6 होगा तो थोड़ा प्रैक्टिस करो तो आप ओरली आंसर निकाल सकते हैं, लिखने की नीड नहीं। -6 और -5 इज -11। सो -6 -5 -6 +4 -6 +7, it like -11 and -2 again say +1, minus into minus plus and plus again, it means positive. Hopefully it is clear. Positive means moving upside. कहां से कहां? -7 से -4 दादा, अनंत तक मत चले जाना, एक लिमिट है हर चीज की। थर्ड वन, अगली रेंज हमारे पास आती है x इज इक्वल टू -4, x इज -4 एंड 5 के बीच में बिलोंग कराना है। -4 5 द बेस्ट वे 0, यस और नो? -4 और 5 के बीच में एक नंबर सबसे अच्छा था 0, 0 पे तो कुछ करने नहीं होता है। सो आई एम सेइंग x इज इक्वल टू 0। whenever take x is equal to 0 you will easily get your answer, आराम से अपने आंसर को आप पा सकते हैं। x is equal to 0 पे अगर आप जाएंगे, it like 0 -5, 0 +4 and 0 +7, -5 4 7, माइनस इंटू प्लस माइनस अगेन से माइनस इंटू प्लस माइनस, ये बनेगा बेटे -20 और बाद में आएगा 7, तो आंसर तो -40 आएगा। अगेन रिपीट, प्रोडक्ट नीड नहीं है, इंपॉर्टेंट है साइन। साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अगेन से नेगेटिव,
नाउ मूव हियर। नेगेटिव मीन डाउनवर्ड जाओगे बेटा, कहीं नहीं जाना है, ये नेगेटिव आ गया। लास्ट वन, मोर देन 5। मोर देन 5 यू कैन पिक 6 7 8 9 10, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी श्रद्धा हो वो लो, कोई मना नहीं करता है। जहां तक जा सकते हैं इनफाइनाइट तक, कोई भी वैल्यू आप चूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे आता है, तो उसमें कोई हमें डाउट नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इन केस सपोज मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे दिखा देता हूँ आपको। इन केस एक्स इज इक्वल टू 6, मैंने एक्स को 6 ले लिया। अब 6 पे मैं सीधे सॉल्व करना हूँ, लिखना नहीं बेटा। यहाँ पे 6 पुट करोगे, पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा, और ये भी पॉजिटिव बनेगा, तीनों पॉजिटिव आ गए। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अपवर्ड। हम यहां से निकले प्लस में। बट चैलेंज अब शुरू हुआ। चैलेंज ये है, जो इनइक्वालिटीज थी आपकी, वो क्या थी, वो हमारे पास थी लेस देन जीरो। क्या थी, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव। तो एक्स हमारे पास नेगेटिव, सॉरी, कहां कहां पे हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। रिजल्ट हमारा जो नेगेटिव आया है, वो आपके सामने इस रेंज पे आया है, ये आप देख सकते हैं, इस रेंज पे। सेकंड नेगेटिव रिजल्ट हमारा इस रेंज पे आया है। ये दो रेंज हमारे पास है जहां पर रिजल्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो हमें इसी रेंज पे काम करते हुए अपने आप को आगे एक्सप्लेन करना होगा। सो विल टेक सिंपली, या तो x -7 से बिलो होगा। -7 से बिलो होने का मतलब है बेटा टिल इनफाइनाइट, वो भी कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। x इज लेस देन -7, बीच में पॉजिटिव पार्ट है, इसको छोड़ दीजिए। फर्दर कहां जाऊंगा मैं, फर्दर जाऊंगा आगे, और x बिलोंग्स टू -4 टू 5। जब आप आंसर शो करने जाएंगे तो आपका आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू, प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयर, यूजिंग स्मॉल ब्रैकेट, minus infinite to -7। hopefully you know why use the small bracket here, why not the square bracket, ये आपको पता होगा। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम बेबी कर मेथड को यूज कर सकते हैं। गिव मी सम मिनट, फ्यू मिनट, कुछ हमें चेंजेस करते हैं, यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं कलर को लेकर। नॉट टेक वाइट कलर, आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे। प्रीवियस नहीं दिखेंगे आपको, है ना। अब हम अपने मार्कर को चेंज कर लेते हैं। नाउ आई चूज अ ब्लैक कलर। चलिए, तो अभी हमने डबल पे काम किया था, अब मैं इसी को एक्सपेंड करता हूँ और आगे एक एग्जांपल और लेता हूँ। एज लाइक x -6, x+2, x माइनस, वेट फॉर मिनट, डोंट कंसिडर दिस वन, थोड़ा सा चेंजेस करना है तो क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ जाए, डिजीज तो बहुत हो रहे हैं। इट लाइक कंसिडर 3x-2 इज मोर देन 0। हमें इस पे वर्कआउट करना है। 3x-2 मोर देन 0। सो अगेन रिपीट, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट, कि x की किस वैल्यू पे आप इसको 0 बना सकते हैं। तो वो आपके सामने आएगा 6, फिर आएगा -2, और यहाँ पे बेटे क्या पुट करेंगे, एडिटिव इनवर्स। तो हम इसको लिख सकते थे इस फॉर्म में, क्योंकि हमने यहाँ से 3 इसका कॉमन निकाल लिया। अब आप इजिली बता सकते हैं x क्या होना चाहिए, एडिटिव इनवर्स जैसा अपोजिट, तो अपोजिट में क्या आएगा, 2/3। ये हमारे यहाँ से क्रिटिकल साइन क्रिएट हो गए। x 6 -2 और 2/3, ये तीन वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो फिर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इट्स कॉल्ड नंबर लाइन। अगेन रिपीट बेटे, प्लीज रिमेंबर नंबर लाइन इज मूविंग माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, एंड दिस नंबर अरेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर में पहले किसको आना पड़ेगा, -2 को आना पड़ेगा, सेकेंड वन 2/3, थर्ड वन 6। हमारे पास रेंज कितनी बन रही है, फिर से देखिए, एक पार्ट ये क्रिएट हुआ,
सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट, नॉट एक फोर्थ पार्ट। 4 पार्ट पे वर्क करना है, 4 पार्ट पे। पहला पार्ट क्या शो करता है, फर्स्ट पे जाऊंगा तो मैं केस 1, फर्स्ट केस आपके सामने बेटे बोलेगा x इज लेस देन -2। सेकंड पार्ट बेटे हमारे सामने आएगा x इज मोर देन -2 एंड लेस देन 2/3। थर्ड केस आपके सामने आएगा x इज मोर देन 2/3 एंड लेस देन 6। फोर्थ हमारे सामने आएगा x इज मोर देन 6। ये वैल्यू आपकी आ गई, 4 केसेस। सो इन दिस 4 केसेस व्हेनेवर टेक x लेस देन -2, -2 मत लेना बेटे, क्योंकि -2 पे तो जीरो हो जाएगा, ऑलरेडी आपने क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर किया हुआ है। इन पे तो आंसर जीरो आएगा, बट हमारी इनइक्वालिटीज क्या कहती है, मोर देन जीरो। इट मीन जीरो अलाउ नहीं है करना है इसको, ज्यादा ध्यान रखना, जीरो से बड़ा रखना होगा हमें। सो x इज लेस देन -2, वी कैन चूज सिंपली -3। अब -3 के बाद मैंने कहा बेटे कि थोड़ा डायरेक्टली करने की कोशिश करो, वैल्यू पुट कर करके हम आंसर बहुत देर तक नहीं निकाल पाएंगे, हमें लॉजिकली सोचना है और उसके ब्याज पे आंसर देना होगा। x इज -3। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आप यहाँ पे ये इक्वेशन थी हमारे पास x-6 x+2 3x-2, आप जब यहाँ पे x-3 पुट करेंगे तो बेटे ये वैल्यू क्या होगी आपकी, निगेटिव हो जाएगी। -3 -6 -9, अगेन रिपीट, रिजल्ट नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली साइन इंपॉर्टेंट। रिजल्ट लेके क्या करोगे यार, हमें इनइक्वालिटी साइन यूज करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव इस पे वर्क करना है। दिस नॉट इंपॉर्टेंट कि आंसर क्या निकल के आ रहा है, हमें वो नीड नहीं है। ठीक है, हम कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे वर्क नहीं करने कि हमें एक्स मालूम है वाई भी फाइंड करना है, नो वाई नहीं फाइंड करना है, हमें सिर्फ साइन फाइंड करना है। ये नेगेटिव, ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव बनेगा, और ये अभी हमारा नेगेटिव बन जाएगा। -3 को 3 रखोगे तो -9 -2 -11, ऑल दिस 3 आर नेगेटिव, और 3 नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने पे बेटा आपका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। ऑड टाइम्स माइनस साइन मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, और नेगेटिव का मतलब होता है नंबर लाइन से डाउन में रहो, नेगेटिव हो, नेगेटिव भैया नेगेटिव। जैसे -3 डिग्री टेम्परेचर, इसका अंदर क्या जीरो से बिलो चले गए तो नेगेटिव। तो पहला कर्व हमारा यहां से बनेगा नेगेटिव फॉर्म में, माइनस। कोई दिमाग मत लगाना कि अल्टरनेटली चलता है बेटा, चलने को चलता है लेकिन कभी नहीं भी चलता है। ठीक है, जनरली अल्टरनेटली चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन कभी ऐसा नहीं भी होता है कि नहीं चलता है। ठीक है, तो इट्स नॉट ए इजी कि हम गैस कर लें और काम खत्म करें। -2 एंड 2/3, जब भी जीरो का मौका मिले आराम से ले लो उसको, जीरो को तो त्यागो नहीं। नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एजम्पशन की बात कर रहा हूँ कि सर हम तो जीरो नंबर एग्जाम में लाएंगे। x इज इक्वल टू 0, x-6 x+2 3x-2, ये जीरो नेगेटिव हो गया, ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, और ये आपकी पॉजिटिव हो गई। पहली वाली आपकी नेगेटिव बनेगी बेटे, फर्स्ट वन नेगेटिव, सेकंड बेटे आपकी पॉजिटिव बनेगी, और थर्ड पे जाओगे तो वो भी हमारी पॉजिटिव बनेगी। तो दो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू प्लस नेगेटिव, और फिर आगे पॉजिटिव, फाइनली आंसर क्या बना, नेगेटिव। माइनस प्लस माइनस, देख लो आगे गए हम सामने, अल्टरनेटली यहाँ पे आ रहा है, फिर से नेगेटिव आ गया, पहला भी नेगेटिव था, दोबारा भी हमारे पास क्या आया, रिजल्ट नेगेटिव निकल के आ गया। नेक्स्ट पे चलता हूं मैं, 2/3 से 6 के बीच में लेकर आना है। अब 2/3 से 6 के बीच में जाऊंगा तो कंडीशन हमारे सामने क्या बनेगी बेटे, वी कैन सिंपली टेक 1 ले लो, 1 इजी हमारे लिए, सबसे आसान है 1 को लेना, क्योंकि 2/3 से बड़ा ही होता है 1। x इज इक्वल टू 1, x-6 x+2 3x+3x-2, तो ये हमारे सामने क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, ये हमारे सामने पॉजिटिव होगा, और ये भी हमारे सामने पॉजिटिव होगा। तो ये ऑल थ्री हमारे क्या बन गए, पॉजिटिव। जब तीनों के तीनों हमारे पॉजिटिव बन गए तो फाइनल आपका आंसर क्या आ गया, नेगेटिव।
नेक्स्ट कंडीशन लास्ट पे आता हूं मैं, सबसे आखिरी वाले पर। जब मैं लास्ट पे जाऊंगा x इज मोर देन 6, तो हमने कहा भाई x को मैंने मान लिया 7। इंटीजर पे सॉल्व करना आसान होगा हमेशा। 7 x माइनस 6 x+2 3x-2। तो ये पॉजिटिव होगा बेटे, ये भी आपका पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तीनों पॉजिटिव मिला के आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। निगेटिव आया था यानी कि यहाँ पर भी क्या जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। और लास्ट में पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे क्या जाएगा? अपवर्ड जाएगा। एक बार सेकंड वाले केस को फिर भी चेक कर लो, हो सकता है मैंने कहीं रॉन्ग कर दिया हो। हाँ देखो ये गलत हो गया हमारे पास, सेकंड कंडीशन ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि 3x-2 जीरो रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और जब नेगेटिव होगा नेगेटिव प्लस नेगेटिव और ये फिर नेगेटिव, तो ये भी क्या बनेगा आपका? पॉजिटिव बनेगा। और बेटे पॉजिटिव होने पे ग्राफ कहाँ जाएगा आपका? अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड नहीं जाएगा। ये ग्राफ चला गया आपका पॉजिटिव। ये हमारे पास था -2 और ये था 2/3। तो यहाँ पे अब हम इसका आराम से आंसर दे सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या कहती है। कैसे हमें इसका आंसर निकालना होगा? 9। तो सिंपली हमारे सामने वैल्यू क्या बनी बेटे? दो कंडीशन आती है, x इज मोर देन -2 एंड लेस देन 2/3, और दूसरा केस आपके सामने आएगा बेटे x इज मोर देन 6। तो x बिलोंग्स टू, प्लीज बी केयरफुल, -2, 2/3 यूनियन 6, इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर बन गया। तो अभी हमने जितने भी रूल लिए हैं वेवी कर्व के लिए, सारे के सारे सिंपल थे, एक सिंपल लाइन पे थे। नॉट एक सेकंड टाइम जब हमारे पास फ्रैक्शन मिलेगा तो कैसे मैनेज करेंगे। अभी हमारा फ्रैक्शन बाकी था। फ्रैक्शन का बेटे फंडा वही है, उसमें कोई ऐसे बहुत बड़ा नहीं है कि हमें बहुत प्रॉब्लम फेस होनी है। तो आप एक सिंपल सा लॉजिक सीखिए, उसको खत्म कर दिए फ्रैक्शन पार्ट को, कुछ नहीं करना है। मैंने क्वेश्चन दिया x-3/x+4 इज लेस देन 0, ये क्वेश्चन दिया बेटे मैंने आपको। ये फ्रैक्शन लेस देन 0 का मतलब है इसका पूरा रिजल्ट आंसर हमारा क्या बनना चाहिए? नेगेटिव बनना चाहिए। और शायद आपने पढ़ा भी होगा, अगर फ्रैक्शन हमारे सामने p/q है तो q कभी भी जीरो नहीं होता है। क्यों? इन केस q जीरो इट इज अनडिफाइंड। तो अगर क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो गया तो फिर सॉल्व क्या कर रहे हो? फिर तो सॉल्व ही नहीं करना, छोड़ दो उसको। तो आपको यहाँ पे रियलाइज करना है x+4 में फिर मैं पूछूंगा आपके सामने बेटे कि x+4 का एडिटिव इनवर्स क्या है? यू कैन सिंपली टेक द साइन चेंज, तो आपका आएगा -4। यानी कि कुछ भी करोगे आपके क्वेश्चन में x कभी भी -4 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x -4 हो जाएगा तो ये केस हमारा अनडिफाइंड को शो करेगा। तो x कभी भी हमारा -4 नहीं बनेगा। अब अगला स्टेप क्या है? पहले तो क्लियर हो गया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है डिनोमिनेटर को हमेशा पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इवन पावर, बिकॉज द रिजल्ट ऑफ एनी number if power is even answer is always positive. This is not important what is the number. एग्जाम्पल लीजिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया, -1 आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। -1² क्या होता है भाई? -1 इंटू -1, आपका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। -1³ बेटे करूंगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस फिर अगेन माइनस, तो -1 हो गया। -1⁴ -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 प्लस प्लस, कितना आ गया? 1 आ गया। आगे चलते हैं बेटे, -1⁵ -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो केस क्या बोला? केस ने सिंपली आपको इन्फॉर्म किया कि अगर पॉजिटिव हमारी पावर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पावर अगर हमारी ऑड है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। आपको यहां से ये कंफर्म होता है। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में याद रखते हैं हमेशा, क्योंकि 1 पे लिखना आसान होता है, होपफुली आपको आता भी होगा। -1n is positive when n is even. -1 odd
इज नेगेटिव, सॉरी ऑड ही लिखना होता है वैसे यहाँ पे, एन, एन इज ऑड। इवन होने पे अगर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव होगा, ऑड होने पे आंसर आपका नेगेटिव आएगा। ये हमारे पास सिंपल सी कंडीशन होती है। तो इसलिए हमेशा डिनोमिनेटर को इवन पावर पे कन्वर्ट कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन का रूल ही पता है अपने को भाई। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा होगा आपने, सभी ने पढ़ा होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? मैंने कहा भाई 3/7 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, अरे सिंपल कंडीशन में यार, कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड फ्रैक्शन बन जाएगा, 6/14। 3 से मल्टीप्लाई कर दो नेक्स्ट फ्रैक्शन बन जाएगा। ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का बेसिक रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बोथ मल्टीप्लाई सेम नंबर, रिजल्ट रिमेन सेम। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। और वही हमारा होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का फंडा। तो यहां पर भी हमारे सामने फ्रैक्शन, इसलिए कि फ्रैक्शन, व्हाट्स अ फ्रैक्शन? x-3/x+4। तो हमने सिंपली बेटे क्या किया, आपके सामने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, x-3x+4 अपॉन x+4x+4 इज लेस देन 0, इट इज रिमेन सेम, क्योंकि आपने फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। सो x-3x+4 अपॉन x+5 होल ऑफ स्क्वायर इज लेस देन 0। यहां से बेनिफिट क्या हुआ कि अगर हमारी इनइक्वालिटीज नेगेटिव है तो नेगेटिव होने में इसमें डिनोमिनेटर का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं? अरे भाई वो तो पॉजिटिव है। अगर भैया ये नेगेटिव है तो रीजन क्या है? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव बना दिया ना आपने, x+4 होल स्क्वायर। ना ये जीरो हो सकता है, क्यों? क्योंकि आप पहले बोल के चाह रहे हो कि x-4 नहीं है, तो ना ये जीरो हो पाएगा। तो अब हमारे सामने जो केस पूरा निकल के आता है वो आता है सिर्फ न्यूमरेटर को बनाना, कि अगर नेगेटिव है तो कौन है? न्यूमरेटर है। और न्यूमरेटर हमारे सामने क्या है? न्यूमरेटर हमारे सामने बेटे है, ऑलरेडी हमें गिवन है x-3 x+4 लेस देन 0। घूम के वापस आ जाओ जहां शुरुआत की थी। शुरुआत कहां से की थी? नंबर 9। तो फ्रैक्शन पे घबराना नहीं, कितना बड़ा फ्रैक्शन हो, दिस नॉट इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल पॉइंट जहां पे जीरो बनेगा, सिंपल एडिटिव इनवर्स 3 रखो और -4 रखो, दो क्रिटिकल पॉइंट, अरेंज इन ऑर्डर, क्योंकि नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाती है। तो यहाँ पे आपका बेटे आएगा -4 और यहाँ पे आएगा 3। दो पॉइंट होने का मतलब लाइन का डिवीजन 3 पार्ट, सीधी सी कंडीशन होती है। ठीक है ना? अगर एक रस्सी को आप 3 बार काटोगे तो उसके पार्ट 4 होते हैं हमेशा, क्योंकि एक पार्ट हमेशा ज्यादा होता है। एक पेपर को आप 3 बार फाड़ दो, उसके 4 पीस मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे केस कितने बने? केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है? x लेस देन -4। केस सेकंड बेटे क्या है? x लेस देन -4 3। केस थर्ड क्या है माय डियर? x मोर देन 3। अब यहां पर आ जाओ, लेस देन 3, वही कंडीशन जो हमने बोला, आपसे कुछ नहीं सोचना है, कहीं दिमाग नहीं लगाना, साइन पे काम करो। अब तो बहुत दूर हो गया ना, हम काफी देर से पढ़ रहे हैं, अब तो सीधे बना सकते हैं। x-3, क्वेश्चन हमारे पास है x-3 x+4 लेस देन 0। मैंने कहा भाई कुछ मत करो, आप x को सीधे सीधे -5 रख दो यहाँ पे, तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है अपवर्ड, ये बात, ये आ गया पॉजिटिव। -4 से 3, अरे जीरो बीच में आ रहा है, चिंता ही नहीं करना, जीरो लगाओ ना, फुर्सत मिले अपने को। x-3 x+4 इज लेस देन 0। x हमारा बना 0, 0 रखो, नेगेटिव। ये क्या बनेगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है? नेगेटिव। कहां चला गया? डाउनवर्ड, नेगेटिव। आगे केस में आते हैं, x मोर देन 3, 4 रख लो, 3 नहीं ले सकते, फ्रैक्शन लेना है डेसिमल में ले सकते, लेकिन लेने की नीड नहीं होती है। इंटीजर मानो ताकि मेंटली कैलकुलेशन कर पाओ इजली। x-3 x+4 लेस देन 0। तो x को अगर मैं 4 मान के चलता हूं तो 4 पे क्या बनेगा भाई? 4 - 3 पॉजिटिव, और ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है, अपवर्ड। खत्म बात। तो फ्रैक्शन पार्ट पे भी अपने कोई कंफ्यूजन लेकर दिमाग में नहीं घूमना है।
तो अब हमारे पास आती है हाउ कैन राइट आंसर। आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम आती है सो प्लीज मीट मी पर्सनली, तो हम आपको फिर से समझा देंगे किस तरह से हम इस पर वर्कआउट करते हैं। तो आंसर बेटे आपके सामने बनेगा x लेस देन -4 और x मोर देन 3। दो कंडीशन है, तो इधर जाओ इधर जाओ, इसलिए और यूज कर रहे हैं। एंड का मतलब होता है दोनों एक साथ अप्लाई करना, इसलिए एंड नहीं बोल सकते। बिलो -4 पे भी आप ट्रू होंगे, अब 3 पे भी आप ट्रू होंगे, और इधर या इधर एंड नहीं हो सकता बेटा। तो ये हमारा आंसर कहलाएगा x बिलोंग्स टू, यूज स्मॉल ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट टू -4 यूनियन 3 टू प्लस इनफाइनाइट। ओके, so we'll continue, wait for a minute.